So hi everyone. Now the topic of group discussion, it is going to be interesting one where you will be given a question and you have to tank about it. You have to think about it that do you support that argument or you do not support that argument, right? So it is going to be two-dimensional group discussion topic. Now before same way, I'm going to give you jot down a brief of group discussion, how we need to do it. First thing would be that once you come for introduction, it would be good morning, everyone. The topic of today's discussion is this. Then you have to give me the meaning of that discussion, like what the topic is about. You have to comprehend the meaning in a very small statement, right? A generic introduction. Then you have to give your argument. Are you in the support of it? Are you against that topic, right? So this would be the person who does the introduction part. So good morning, everyone. The topic of discussion is this and this, and the introduction part is this. And according to me, I support this argument because, and then you can give your viewpoint. Then this discussion, then you will open the house for discussion. Everyone will give their viewpoints. Do remember, it is a group discussion. It's not a debate. That once you support some idea, you cannot shift. You can shift. You can go against that topic. You can go in the favor of that topic. Third, language is no such bar. Okay, so it can be you can speak Hindi, English, but what I want is quality points from all of you. You can have a blend of it. You do not need to speak more because many of you just start cutting each other. That is not required. You do not need to speak more. You need to speak quality points. Okay, so the best of the points you need to tell me. Now, the topic can go when it is a question mark. You have to give me different dimensions of that topic also. डिफरेंट डायमेंशंस मींस कि अगर मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो अगर सिंपल टॉपिक मिलता है एजुकेशन तो उसमें क्या फायदे हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एजुकेशन, क्या चल रहा है, चैलेंजेस क्या है एजुकेशन में, व्हाट आर द यू कैन से गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट्स क्या है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं. तो सपोज आप सभी बात कर रहे हो इन द चैलेंजेस. अगर किसी पर्सन को लगता है कि अब चैलेंजेस मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है और 1-2 मिनट डिस्कशन हो गई है, तो अब मैं मूव कर सकता हूँ टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसीज. देन यू विल से दैट फ्रेंड्स, नाउ आई वांट टू डिस्कस, आई वांट टू थ्रो लाइट टुवर्ड्स द न्यू डायमेंशन एंड दैट इज गोइंग टू बी सम ऑफ द यू कैन से द पॉलिसीज व्हिच आर बीइंग ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो जब भी आपने डायमेंशन चेंज करनी है तो अपना व्यू पॉइंट लाइन रख के बोलनी है. अदरवाइज ऑलवेज स्टार्ट विद द हेडर. हेडर के बिना कभी भी स्टार्ट मत कर देना एक्सप्लेनिंग. दैट वोंट गिव योर वेटेज ऑफ टू द पॉइंटर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत लंबे पॉइंट नहीं बोलने हैं. जितना ज्यादा बोलोगे उतनी गलतियां करोगे. शॉर्टर द पॉइंट्स बट क्वालिटी पॉइंट्स विल गिव यू सम ऑफ द एक्स्ट्रा मार्क्स. ठीक है, और किसी को कट नहीं करना, रेलेवेंट पॉइंट्स बोलना एंड डू गो फॉर एग्जांपल्स. एग्जांपल्स मिस करते हो, रेलेवेंट एग्जांपल जरूर देने की कोशिश करना. सपोज किसी ने कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया है, जस्ट बी वेरी अटेंटिव एंड एट दैट पॉइंट ओनली hit that person with an example and win a point. Clear about how to do it? And conclusion should be a generic one. Introduction neutral होनी चाहिए, conclusion neutral होना चाहिए. Same way अगर मैं कोई टॉपिक दे रही हूँ तो उसमें किस तरह से आ सकता है, आप उसको पॉजिटिव एंडिंग कैसे कर सकते हैं. Before revealing the topic, I'm going to give I think introduction can be done by Ramakant today and Yes, ma'am. conclusion can be done by Amber. Yes, ma'am. Is it fine? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To do, किसी ने नहीं करना है conclusion या फिर conclusion is going to be tough today. Yes, ma'am, I will do. You will do? Chalo, great. Okay, so the topic is very interesting. It is do deadlines negatively impact creativity? Do deadlines negatively impact creativity? Now this is a question कि क्या जो deadlines हैं वो negative impact लाती हैं creativity पर या नहीं लाती है. Now here what you have to do is you have to think either yes or no. लेकिन आप बीच में similar way debate नहीं है, ये discussion है, तो yes or no दोनों को mix करके भी बोल सकते हो. Clear हो गया ये चीज? Now, Yes, it will be, the discussion will go for approximately 10 to 12 minutes. We'll do it out, right? Let's see how many of you are very eager and attentive in this. So first of all, 2 minutes for your point writing, and it is 2:44 by my side. 2:46 I'm going to start. Approximately 2:46, 2:47. Clear? Okay, go ahead, guys.
Okay, I guess the time is up now, and it's 2:46 by my side. Who was to start? I think Ramakant. Yes, ma'am. Okay, all the best. Go ahead now, guys. First of all, hello guys. Thank you for giving an opportunity to start our conversation on the topic of do deadlines negatively impact on creativity. And I want like to डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो डेडलाइन होती है आपकी, वो क्या होती है कि किसी काम को आप किसी बाउंडेशन पे या किसी टाइम ड्यूरेशन पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग डेडलाइन बोलते हैं। अब इसका क्रिएटिविटी के ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है आपके, कि अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं तो आपको सोचने और समझने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्टली वर्क करने के कंपेरिजन में। तो इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसका शायद इम्पैक्ट अच्छा भी हो सकता है और इसका निगेटिव भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका हमारे क्रिएटिविटी का, हमारे मतलब डेडलाइन का क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का एक पर्टिकुलर लिमिट होती है और उस लिमिट में काम करके चीजों को इफेक्टिवली किया जा सकता है। विद दैट आई वुड लाइक टू ओपन द हाउस फॉर अदर्स। इसी के साथ मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लाइक जस्ट माय फ्रेंड सेड कि हाँ क्रिएटिविटी का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट यस इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, बिकॉज वी कैन सी कि जो भी पोएट्स, लिरिसिस्ट या फिर राइटर्स होते हैं, ये जनरली किसी भी क्वाइट प्लेस पे जाते हैं टू काम देमसेल्फ डाउन, की काम होंगे तो ज्यादा क्रिएटिव सोच पाएंगे ऐसा, तो टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस। बट इफ देयर इज सम मुझे लगता है कि अगर और डेडलाइन अगर बहुत कम टाइम का है तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जरूर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से उनके क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट आएगा। एक्सटर्नल मुझे लगता है कि मैं जो डेडलाइन की कुछ बात ऐसी है होनी चाहिए एजुकेशन जो सेक्टर में पर्सन की ऐड क्रिएटिविटी कर रहा ना करे। फिर डेडलाइन से कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो पर्सन उस पे प्रेशर, स्ट्रेस ना हो पर्सन। डेडलाइन शुड बी सच दैट कि प्रोजेक्ट शुड बी अंडर प्रेशर बट नॉट अंडर स्ट्रेस। अगर वो अंडर स्ट्रेस होगा तो उससे क्रिएटिव डेफिनेटली कम होगी, मुझे लगता है। मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मैं क्या होता एजुकेशन था कि सेक्टर हम में एक लोग पॉइंट को ऐड करना प्रोजेक्ट चाहता हूँ मिलता था, कि अगर हम हम लोग को लोग एक प्रोजेक्ट मिलता था कॉलेज में, तो उसमें क्या होता था कि सब लास्ट में ही करते थे, और लास्ट में करते थे ना तो सब लोग न्यू न्यू आइडियाज और एट वंस सोच पाते थे, तो टाइम बॉन्डेड रहता था, तो इसलिए क्रिएटिविटी मीन्स आपके पास टाइम नहीं है, आपको एट वंस कुछ ना कुछ सोचना है, तो वो फोर्स करता था मेंटल अपने दिमाग को कि हाँ क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव बनो। मैं इसी बात मेरा पे ये एक पॉइंट मानना ऐड है, करना मेरा चाहता ये हूँ मानना है जैसे कि कि अभी हम अभी मेरे हम फ्रेंड ने लोग जब बताया, तो उस पॉइंट डेडलाइन पे में काम ये करते पॉइंट हैं ऐड करना चाह फिर रहा हूँ। वही वेट वेट वन तो पर्सन एजुकेशन में क्या होता है कि हर बच्चा एक तरह का नहीं होता है, सबकी अपनी डिफरेंट लर्निंग पावर होती है। तो अगर एक हम लोग डेडलाइन फिक्स कर देते हैं, तो जो फास्ट लर्नर होते हैं या जिनकी क्रिएटिव थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा अच्छे से और वेरी फास्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनकी क्रिएटिव लर्निंग उतनी फास्ट नहीं है या उतनी बेहतर नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको उससे नुकसान होता है। तो मुझे जो मेरा जो मेरा क्योंकि ये एक मानना है एग्जाम्पल कि हम लोग ठीक है, एजुकेशन सेक्टर पे बात किया नीलेश ने, बट एक हर प्रैक्टिकल समय एग्जांपल मतलब दो नाउ डेज वी डेडलाइन कैन एक साथ सी नहीं कि दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दो डेडलाइन देंगे तो जो बंदा काम कर रहा है वो सोचेगा कि चलो नेक्स्ट डेडलाइन को वो देखेगा कि सबसे दूर वाला डेडलाइन क्या है और उस हिसाब से वो काम करेगा। तो मेरा मुझे मानना है लगता है कि कि जो जो फर्स्ट फर्स्ट डेडलाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे काम वो टाइम बाउंड होते हैं, क्योंकि हम मुझे लोग लगता है कि अगर टाइम डेडलाइन पर है इसमें तो like to add one more point निगेटिवली here that इम्पैक्ट अगर कर रहा डेडलाइन है नहीं देखा है तो जो हमारे डेडलाइन का एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो इसका डेडलाइन कि है पर्सन कैसे को क्रिएट वो थोड़ा वो अगर पर्सन क्रिएटिविटी डेडलाइन को है तो कैसे पर्सन कम थोड़ा कर रहा है, उसका एक डिसिप्लिन एग्जांपल रहेगा मैं देना बंदा। चाहूंगा। अगर डेडलाइन या नहीं होगी धीरेश तो बंदा ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, काम को टालने की कोशिश ज्यादा करेगा कि काम को अब कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो डेडलाइन उसको थोड़ा तो या तो ठीक मेरा है, ये पॉइंट है एक कि एग्जांपल दो मैं देना डेडलाइन इम्पैक्ट कर सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क, हम लाइक लोग को व्हाट टाइप ऑफ वर्क रेस्ट्रिक्टेड वी आर अमाउंट ऑफ डूइंग। टाइम में काम करना पड़ता है। तो हम लोग बहुत सारे रिडेंडेंट वर्क जो होता है, हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में जो बहुत सारे रिडेंडेंट काम होता है वो हम लोग नहीं करते हैं, और उससे हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ता है। मैं इसमें एक और डेफिनेटली पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे जब कि हमारे रिसर्च एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स बारे होते में हैं, बात कर रहे हैं उसमें वहां हमारा चीज एमएसडी अलग हो प्रोग्राम जाएगी। और जो पीएचडी प्रोग्राम होता है वो फिक्स ड्यूरेशन का होता है। उसकी पर्टिकुलर रीजन ये है क्योंकि अगर उसको फिक्स ड्यूरेशन नहीं किया जाएगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग कभी ना कभी चलता ही चले जाएगा, और पीपल यस उस कभी करेक्ट। काम को जो उनको असाइन किया वो कभी पूरा ही नहीं कर पेंडिंग पाएंगे। करते हैं। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है कि वो चीजें कंटिन्यूअसली लॉन्ग लास्टिंग चलती जाएगी।
या सेल्फ जिनको इम्प्रूवमेंट जिनको पे एक कोई पॉइंट चीज बोलना करने का चाहूंगा। है ही उन सेल्फ पे ये सब बात नहीं आएगा। सी डेडलाइन तो उनके लिए जरूरी हो जाता है जो कि काम नहीं करना चाह रहे, बट सपोज जिनको काम करना ही है, लाइक एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मार्वल के अभी मूवीज हम लोग देख रहे हैं, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी लाइक 1 or 2 movies इन अ ईयर। राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर मेकिंग लाइक 4 5 movies एंड इवन 2 3 सीरीज एट दैट टाइम। तो जो एनिमेट कर रहे हैं उनको उनको क्रिएटिव थिंकिंग करना है, वीएफएक्स ये सब के लिए। बट अभी हम लोग देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ मूवीज है डेफिनेटली इट हैज गॉन डाउन। व्हाई? बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द डेडलाइन ओनली। सो बट नाउअडेज या सो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर डेडलाइन रहे उनके लिए जिनको काम करना ही है, क्रिएटिव सोचना ही है, तो ये डेडलाइन डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उनपे। लेकिन मुझे लगता है Also for a क्रिएटिविटी person कोई who is एंडिंग नहीं होती, creative, क्रिएटिविटी we कोई know that एंडिंग नहीं, वो he will क्रिएटिविटी come कहीं with तक भी some जा type of सकती है। अगर creativity. हमको डेडलाइन So लगाना for है तो that क्रिएटिविटी person, को लिमिट होगी। creativity या deadline is देयर not इज अ important. सॉल्यूशन कि डेडलाइन बहुत छोटा ना रखा जाए, कुछ हाँ, ऑप्टिमम कि रखा जाए। देयर दैट इज इज अ नो लिमिट टू सॉल्यूशन। जैसे मैं नवीन की क्रिएटिविटी। द बात मोर से टाइम नवीन की यू बात वर्क से द मैं मोर पॉइंट क्रिएटिव यू ऐड करना बिकम। चाहता हूँ। नवीन की बात से मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो उसने मूवीज की बात की, तो जैसे कि अक्षय कुमार है, तो अक्षय कुमार जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मूवी करने की कोशिश करता है। तो जैसे उसने पृथ्वीराज चौहान मूवी की थी, तो वो मार्केट में इतनी नहीं चली। सब लोगों ने क्लेम किया कि उसने उतना इनपुट नहीं दिया, उसने अपना क्रिएटिव एक्टिंग नहीं दी, दिखाई कि वो जैसा और बताओ ज्यादा बेहतर हो सके। क्वालिटी। हाँ, क्वालिटी नहीं या दिखाई, क्वालिटी इनपुट नहीं दिया उसने डेडलाइन के चलते, क्योंकि उसका फिक्स रहता है कि 30 से 35 डेज में उसको मूवी कवर करनी है। तो उससे मूवीज उतनी बेहतर नहीं बन पाती है और कभी वही कभी। आमिर खान का बात हाँ करें तो वो काफी टाइम लेता है, हाँ अच्छा बनाता हाँ है। सिमिलरली क्रिस्टोफर हाँ नोलन डायरेक्टर है, But उनका मूवी एक एक but दो at दो the साल या same तीन time, साल पे एक आई मूवी थिंक आता है। हम लोग बस क्यों? if क्योंकि we वो आर्टिस्टिक वर्क क्वालिटी पे पे ज्यादा बात कर डिपेंड रहे हैं। करते हैं। but हम अगर लोग हम लोग अपने ज्यादा प्रोजेक्ट समय से लेंगे तो हम रिलेटेड लोग या फिर रिसोर्स अपने वेस्ट करेंगे ना, एजुकेशन लाइक से। टाइम वेस्ट सी करेंगे दैट इज अदर नॉट द रिसोर्स। हाँ, टॉपिक, यस। एक्चुअली टॉपिक वो So नहीं है। अक्षय see, कुमार और so मार्वल वाला it केस depends वो on the work ऐसे what we हैंडल are कर doing. सकता है, एक ही If डेडलाइन quality दे matters, पर then पर deadline should लंबा not दे। be the barrier. मैं यहाँ पे एक एक ही एग्जांपल सोल्यूशन देना में डेडलाइन क्या चाहूंगा। कर देगा सकता जो है, बस। बहुत एक ही फेमस डेडलाइन दे पेंटिंग है पर लंबा दे मोनालिसा थोड़ा की, सा। जो जो तो इससे जो है ना उसके प्रॉब्लम पेंटर सॉल्व थे। हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लोग देना एक चाहूंगा, जो डेडलाइन बहुत आर्टिस्टिक फेमस वर्क के पेंटिंग है बारे में मोनालिसा बस की, वो अभी भी पूछ रहे हैं। इनकम्प्लीट है। हम क्योंकि जो हम उसके लोग जो ये पेंटर चीज था उनको लगता था कि अभी मुझे और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए, तो इस वजह से पेंटिंग अभी तक इनकम्प्लीट है। तो अगर वो वहाँ डेडलाइन होती तो शायद वो पेंटिंग पूरी होती। यही तो अगर वहां कोई डेडलाइन होती है तो चीज को पूरा होने का वो मिल जाता काम, कि वो पेंटिंग अभी तक इनकम्प्लीट है एज पर देयर पेंटर। जो बहुत फेमस और हम पेंटिंग लोग बस है मोनालिसा की। आर्टिस्टिक वर्क पे बात कर रहे हैं। हम लोग अपने एजुकेशन में देखें, हम लोग को एग्जाम एक तरह का डेडलाइन रहता है कि हम लोग को अब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। और अगर हम लोग उस डेडलाइन को नहीं रखेंगे तो हम लोग कुछ पढ़े भी ना शायद। या तो फिर ऐसा होता एजुकेशन जैसे सेक्टर में डेडलाइन देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ अगर नहीं देंगे तो हम देखते और हैं कि जब तक एग्जाम नहीं आता है एजुकेशन उसके 1 2 तब दिन तक हम लोग को पहले तक टेंडेंसी हम नहीं लोग पड़ता। पढ़ना भी स्टार्ट नहीं करते। हाँ, एजुकेशन मैं में दो और मुझे पॉइंट क्या रखना लगता है, चाहता हूँ। डेफिनेटली इट कंस्ट्रक्शन वर्क इज में भी वेरी नवीन की इंपॉर्टेंट। हम बात लोग से एक देते या हैं। पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। क्रिएटिव भी काफी बनाता है। प्रोजेक्ट हाँ का जब डेडलाइन का टाइम आता है तो ग्रुप एज ए ग्रुप काफी अच्छे से काम होने लगता है, सभी और लोग हमारी क्रिएटिव थिंकिंग एफिशिएंसी भी करने बढ़ लगते हैं, जाती और है। और वैसे भी रिडंडेंट मैं वर्क भी डेफिनेटली वो कम होता है। लाइक कुछ भी मैं नहीं नवीन करते, जो एक्चुअली एग्जाम के एक महीना जरूरी है और एफिशिएंट वर्क है वही करते हैं। नहीं, मैं एग्जाम बहुत के सारे एक महीना टास्क पहले मैं बहुत सारे नवीन टास्क नवीन ऐसे की बात होते पे हैं पॉइंट। जो हमें लगता है ये बहुत आसान है और हम एक डेडलाइन रख देते हैं, पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और वो हमें तब पता चलता है कि जब हम उस काम में जाते हैं, वहां पे बहुत सारा क्रिएटिविटी का। तो वो डिपेंड करता है हम लोग किस टाइप का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग रही है तो ऑब्वियसली टाइम डेडलाइन विल विल इंक्रीज। सो इट डिपेंड्स। ये तो आई थिंक मैं पूरा इसी बात पे डेडलाइन एक शुड बी पॉइंट ऐड फ्लेक्सिबल। करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल मैं ऐड कर रिसेंटली सकता मैं हूँ, वेट माइंडसेट वेट पे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि एग्जाम के 2 महीने पहले मैं उतना मेहनत नहीं कर पा रहा था। मैं पढ़ना चाह रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पर उतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर जब एग्जाम आया, 1 महीना जब बचा हुआ था, तो क्या पता कैसे मतलब बहुत सारा मेहनत में करने लगा। और 80-20 प्रिंसिपल एक होता है, पैरेटो प्रिंसिपल, मीन्स 80-20 मतलब 20% ही 80% मार्क्स दिलाता है। तो वो सब है ना, क्रिएटिविटी उसमें दिखने लगा मेरा। आई थिंक यू आर अंडर प्रेशर, दैट व्हाई यू परफॉर्म बेटर। बिकॉज ये तो पर्सन पर्सन डिपेंड करता है कि तो कोई हम बंदे लोग होंगे कि वो इसको कहेंगे ओवरऑल सबको कह इंडिया में मैं सकते अभी हैं छोड़ देता कि हूं, मैं कुछ मैं करता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ता मैं ही एक नहीं, फेल ही हो पॉइंट जाऊंगा। कुछ बंदे ऐसे भी सोच सकते ओके हैं। हाँ, मैं एक तो दैट हम पॉइंट डिपेंड लोग ऐड अपॉन करना द चाहता ओवरऑल हूँ। ये इंडिविजुअल। रिसेंटली बात मैं भी कह सकते आईआईटी हैं दिल्ली कि में एक पढ़ रहा हूँ। जुडिश तो यहाँ पे एक हेलो हम लोग ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक जुडिशियस अमाउंट ऑफ टाइम गिवन टू डेडलाइन इज नेसेसरी। हम लोग को एक
डेफिनेट डेडलाइन हर एक चीज में देना ही चाहिए, ताकि हम लोग उस पीरियड में अपना काम कर सके। और अगर हम लोग ज्यादा डेडलाइन को भी अगर दे दिए तो उससे भी हम लोग का एफिशिएंसी कम होगा, और हो सकता है क्रिएटिविटी भी वैसा ना हो सके। I partially disagree यहाँ with के you. अगर वो Like डेडलाइन नहीं है maybe तो जो कि we have to एजुकेशन सिस्टम में रिसेंटली continuously वेट मिनट evaluate the task which we are performing, so that we can say that what type of creativity it needs and what amount of time it takes. So we cannot say that deadline is fixed. Like many tasks are complicated, so we cannot say. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। चाहे मैं अभी रिसेंटली मैं आईआईटी वेट रहा हूँ, मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ इस समय, या फिर मैं अगर किसी कॉलेज की बात करता हूँ या स्कूल की बात करता हूँ, तो उनका जो शेड्यूल इतना हेक्टिक होता है कि वो बैक टू बैक टेस्ट पेपर्स माइनस असाइनमेंट लेते रहते हैं। तो जो बच्चे की क्रिएटिविटी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकता है। जैसे कि अगर आईआईटी दिल्ली में मैं बात करूं, तो रिसेंटली एक आयुष शासना का लड़का है, उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे वर्कलोड बहुत हेक्टिक था, वो कुछ और नहीं कर पा रहा था, बस प्रिपरेशन करता रहता था एग्जाम्स की। तो वो क्रिएटिव चीज कर ही नहीं सकता था, जैसे कि या फिर अगर वो स्पोर्ट्स खेलना है या फिर वो प्रोग्रामिंग करनी है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, तो वो भी वो नहीं कर पा रहा था। तो अब इसी वजह से आईआईटी दिल्ली ने एक काम किया है कि यहाँ पहले 2 माइनर 1 मेजर होता था, अब उन्होंने 1 महीना पहले वहाँ यहाँ पे 1 माइनर और 1 मेजर कर दिया है। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है इसके करस्पॉन्डिंग। मैं एक बार फिर से So टॉपिक now पे we are आना talking चाहूंगा। about solution. लाइक हमारा जो टॉपिक है वो है Self-improvement टू पे- डेडलाइन नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रिएटिविटी। टॉपिक से काफी डाइग्रेस करके जा रहे हैं। उसका ये मतलब है कि अगर हम लोग पहले ही 2 डेडलाइन बता दिया जाए, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है और हम लोग कम समय है। सोचेंगे। तो ये एक तरीके से बात थोड़ा सही भी लग रहा है। लाइक इन मेनी केस इट इज ट्रू। अगर डेडलाइन नहीं होगी तो वो पर्सन को लेजी वो बनाएगा कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करे कि अब कल कर लूंगा। तो डेडलाइन शुड बी, कुछ डेडलाइन होनी चाहिए, डिपेंड ऑन द वर्क देयर शुड बी सम डेडलाइन एंड दे विल द पर्सन परफॉर्म वेरी वेल। So it depends on the अभी person, जैसे right? अगर इसको जैसे किड्स क्या के होता बारे है में, कि- अगर किड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो अभी बच्चे हैं इन्फेंट्स या फिर जो अभी जूनियर क्लासेस में हैं, उनके लिए डेडलाइन काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर किड्स को अगर डेडलाइन ना दिया जाए तो वो सिर्फ खेलते रह जाएंगे या ये करते रह जाएंगे। Yes, उस correct. केस में डेडलाइन जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बट यही अगर हम लोग किसी यंग जो कि अभी एस्पायर कर रहा है, लाइक ही इज हार्ड वर्किंग पर्सन, for him maybe deadline is not that good thing. So And किस many person एस्पेक्ट are में बात चल creative. रहा है, Yes, हाँ, correct. किस एस्पेक्ट में बात चल रहा है उस पर डिपेंड कर जाता है कि डेडलाइन पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है या Persons are नेगेटिव इम्पैक्ट creative but डाल lazy. रहा है। So for them, Yes. ध्यान रखनी पड़ेगी Yes. कि अगर हम लोग यंग पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट मत हो, उसके लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। अगर वैसा हम लोग करेंगे कि यंग पर्सन को बाउंडिंग ना दे तो मैं yes, डेडलाइन many के person are करस्पॉन्डिंग creative but अच्छा। lazy. For them, two deadline are important. Means single deadline is important for the lazy person. He is creative, but he is not by seeing two deadline. He is not doing the work in proper manner. For them, single दो deadline is डेडलाइन important. वो लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जो टास्क को देखते ही थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो उन लोग के लिए थोड़ा एक्सटेंडेड, मतलब एक डेडलाइन हुआ फिर दूसरा डेडलाइन हुआ। हाँ, एक डेडलाइन स्टेज वाइज हो जाए, मतलब कि पहला डेडलाइन के पहले ही दूसरा डेडलाइन नहीं डिस्क्लोज हो। Yes, ऐसा yes, सोल्यूशन अगर correct. प्रोवाइड किया जाए तो नर्वस पीपल सारे लोग हैंडल हो जाएंगे। दिस विल बी द बेस्ट सोल्यूशन। अगर और हम एक लोग और पॉइंट है जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे एक आता है सेल्फ इम्पोज्ड रूल। सेल्फ इम्पोज्ड रूल मतलब तुम अपने लिए एक रूल बनाते हो, लाइक कि मैं अगर ये चाहता हूँ, कुछ खाना चाहता हूँ अच्छा चीज, तो तुम क्या बोलते हैं 50 डिप्स मारोगे। 50 डिप्स तुम बहुत दिन से प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, बट क्योंकि आपका टेंडेंसी है अच्छा चीज खाने का, और उसको एट वंस, मतलब उसके जस्ट पहले आप एक डेडलाइन सेट करो कि अभी करना है, इससे जस्ट पहले, तो एक ही डेडलाइन, तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा अपने सेल्फ प्रोडक्टिविटी के लिए। मुझे लगता है कि अगर कोई काम डेडलाइन से पहले पूरा हो रहा है तो क्रिएटिविटी अगर कोई काम डेडलाइन से पहले पूरा हो रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और कोई काम डेडलाइन से बाद पूरा हो रहा है तो हमें उसे वो करना चाहिए पनिश, ताकि जो बंदा जो पहले कर रहा है वो भी अच्छा करे, और उसको लेट कर रहा है तो उसे पनिशमेंट मिले, ताकि ये डेडलाइन भी उसे ज्यादा बैडली इफेक्ट ना करे। एक तरीके से हम इसमें रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं कि अगर कुछ वो पहले इस काम को कर रहा है तो उसमें पॉसिबिलिटी देंगे। जैसे कि हम लोग इनकम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर इनकम टैक्स अगर आप बहुत
तो उसमें हम लोग को But I परसेंटेज की think कोई we are छूट नहीं talking थी। about creativity, not मैं एक repetitive Yeah, पॉइंट work. ऐड करना चाहता solution हूँ पे कि बात होने डेडलाइन लग ना गया है कि होना भी solution डेडलाइन Yes. if ना we talk होना भी about एक solution बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर हम लोग प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें या फिर जैसे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स की एक डेडलाइन होती है। तो इनिशियली हम लोग उसके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं और एक फिक्स टेन्योर पे हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। लेकिन अगर हम लोग उसमें नहीं करेंगे उसको टाइम से, तो उससे हैवी लॉसेस फर्म को फेस करना पड़ता है, साथ में एम्प्लॉयज भी उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो वहाँ पे डेडलाइन बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाती है। जैसे अगर कोई डेडलाइन फिक्स है तो हम पूरा शेड्यूल बना सकते हैं कि इस टाइम तक ये पार्ट पूरा हो जाना चाहिए, इस टाइम तक ये पार्ट पूरा हो जाना चाहिए, ताकि हमारा पूरा वर्क डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो सके, हम वर्क को डिले ना करें। नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जब वो कमीशनिंग उनका हो जाता है फिर पता चलता है कि इनमें क्या फॉल्ट था। तो अगर हम लोग पहले ही 2 डेडलाइन डाल देंगे तो फिर से वो 2 डेडलाइन के बाद भी वो प्रोजेक्ट वैसे ही फेल होगा। तो यहाँ पे ये चीज हो सकता है कि सिंगल डेडलाइन ही दिया जाए, 2 डेडलाइन नहीं दिया जाए। Can I intervene Okay. now? All of you? Yes, Done please. with discussion? Yes, Because please. I got the topic is now either should we have one deadline or two deadline. और डेडलाइन होनी अच्छी है या बुरी है, टॉपिक कुछ और ही चला गया शायद. And that is why I didn't want to intervene. Let the people, Ayush, Nilesh, and I think Dheeraj plus Amber, they all started. One deadline should be there, या two deadlines should be there. Start किसने किया था ये टॉपिक? इसकी इंट्रोडक्शन तो दी नहीं आप लोगों ने. You should have given the introduction of this topic also. मैम 2 डेडलाइन के बारे में मैंने एक बार भी नहीं बोला है कहीं भी। फेवर ऑफ दीज की डेडलाइंस कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ. किसने कंक्लूड करना था? अंबर ने. वो तो कंक्लूड के लिए आपने सारे ने मिलके अलग अलग कंफ्यूजन दे दिए. यहाँ तो टॉपिक अलग शुरू हो गया, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन कर लेते, या फिर अंबर की हेल्प कर रहे थे. अंबर, गो फॉर द कंफ्यूजन, देन आई शुड गिव यू फीडबैक. Okay. So, thank you, friends. This was very good. This was everyone put their valuable point, and yes, now it's time to conclude. So we discussed about the what are the negative to deadline, whether it is negative impact on creativity or not. पहले में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उस पे अगर डेडलाइन 2 डेडलाइन मिलता है तो हम लोग डिले करते हैं, ये टेंडेंसी अपना रहता है. फिर दूसरा हम लोग ने बात की, एक ने एग्जांपल दिया पोएट, मार्वल और अक्षय कुमार का मूवी का, कि वो लोग अगर बहुत सारे मूवी करते हैं तो क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है. और एक फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर पे एक पॉइंट आया था. जैसे फास्ट लर्नर इजीली 1 डेडलाइन रहता है तो इजीली कर पाते हैं वो हैंडल, और स्लो लर्नर को नर्वसनेस फेस करना पड़ता है. और तीसरा क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल है कि 80-20 प्रिंसिपल. अगर मतलब एग्जाम के बहुत दिन पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो 80-20 नहीं लग सकता है. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वो लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं, फ्लो में बहुत सारा चीज पड़ जाते हैं. तो 80-20 प्रिंसिपल अगर टाइम बाउंडेड रहता है तो आराम से लग सकता है. फिर किड्स को थोड़ा टाइम बाउंडेड टास्क रहना चाहिए, नहीं तो वो खेलते ही रह जाएंगे. एंड यहाँ अगर 2 डेडलाइन रहता है तो प्रोकास्टिनेशन होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है. दीज आर द ऑल पॉइंट्स. Thank you. Very good. Now, if you guys are to rate each other, क्या करोगे? अंबर का कंफ्यूजन अच्छा लगा कि बुरा लगा? मुझे जेन्युइनली बता दो. Was it good or average? I won't say demean it out. जितना टाइम अंबर बाद में डेडलाइन कैसी होनी चाहिए उस पे लगाया, बेटर यू शुड हैव प्रिपेयर्ड योर कंक्लूजन. दैट वाज योर पार्ट. क्लियर? मैं उसी चीज पे बोलती हूँ. जैसे एट द वेरी स्टार्ट आई से यू, किसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था? रामाकांत बहुत पास था, नवीन वाज देयर, प्रताप, नीलेश का पॉइंट बहुत अच्छा था. बट नीलेश गोज ऑन एन एक्सेसिव पार्टिसिपेशन, पॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं. They are the things that you need to apply and you do not agree with it. मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने शायद ये बोली. You get feedback from all the different mentors, and that is all about your participation also. Now, before these things,
हर एक का कंक्लूजन बहुत लंबा नहीं बताना. If I have to speak the conclusion from your behalf, it would be that, okay, so we had a very good discussion, or you can say we had a brief thought process on do the deadlines create a negative impact or no, where we had a discussion on both aspects, positive event and negative event. So we summed up with the very mutual ideas that deadlines should be less stressful and they should be motivational for you guys. वो नहीं एक लाइन पकड़ लिया, and I don't know how many times I've repeated this context. Everyone, मुझे नहीं पता किसने स्टार्ट किया. 2 होनी चाहिए कि 1 होनी चाहिए, 2 डेडलाइन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए. आयुष ने स्टार्ट किया ये चीज. मैम एक्चुअली यहाँ पे 2 डेडलाइन निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा तो मे बी सिंगल डेडलाइन नहीं करेगा, तो ये सोच के भाई मुझे तो टॉपिक बता देते, मैं चेंज कर देती टॉपिक. देयर शुड बी 2 डेडलाइंस और नो. यहाँ पे तो ज्यादा अच्छी डिस्कशन होनी शुरू हो गई थी बाद में. जो मेन टॉपिक था वो तो भाई तुम लोगों ने कब का छोड़ दिया था. वो तो तुम भूल चुके थे 5 मिनट बाद कि हमारा ये टॉपिक भी था. दैट वाज नॉट इवन अ टॉपिक, आई गेस. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज कंप्लेन टू ऑल ऑफ यू कि भाई डाइग्रेशन मत करो. तुम्हारा नेगेटिव इम्पैक्ट है. जो कंक्लूजन बोलते हैं ना, दैट दीज शुड बी द कंक्लूजन. सो ओके, आई एम गोइंग टू ब्रीफ. ये अंबर का काम था कि अंबर ट्रिक्स लेकर आता कि कैसे लेस स्ट्रेसफुल और मोटिवेशनल हो सकती है बाय नॉट हैम्परिंग द पर्सन, बाय मेकिंग इट लेस स्ट्रेसफुल, मोटिवेशनल करके. कैसे कैसे मोटिवेशनल करके. तो सिर्फ अंबर का काम था कंक्लूजन में थोड़ा बहुत डालना, और अंबर हर एक का पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करना. अब मुझे ये बताओ, अक्षय कुमार साल की 4 मूवी साइन कर रहा है, 2 कर रहा है, उसकी मर्जी, उसको पैसे मिलते हैं भाई. तुम कौन होते बताने वाले वो डेडलाइन है कि उसकी नहीं है. उसने खुद ही रखी हुई है कि मेरी डेडलाइन है. मूवी की स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, मूवी चलती है नहीं चलती है, दैट डिपेंड्स ऑन स्क्रिप्ट. वो अक्षय कुमार को पैसे भी मिल गए, डिस्कशन भी होगी. ये आगे नहीं, आमिर खान ज्यादा अच्छी करता है. बिकॉज डू यू थिंक व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू गाइस मेक बीइंग सो एडल्ट. नहीं, आमिर खान ना वो एक एक मूवी पकड़ता है, वो अच्छे से एक्टिंग करके वो एक ही मूवी करता है. भाई वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, तुम स्क्रिप्ट किसकी साइन करोगे. How you guys can relate it out to the deadlines with Akshay Kumar and Amir Khan? Can you just? I was just wondering what kind of examples do you give? Don't you laugh on yourself? और बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो. मैं किसने स्टार्ट किया था ये? I don't know why the guys you start even कि ये किसने स्टार्ट. उसके एग्जांपल देता मार्वल का, फिर आया था एग्जांपल ये. मार्वल एग्जांपल. भाई मार्वल को भी पैसे मिल रहे हैं, वो जितनी वेब सीरीज बनाएंगे करे, वो तो दे आर ट्राइंग टू मेक इट इन इनोवेटिव बिजनेस. यस मैम, वो ठीक है, बट क्रिएटिविटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. सारा ऑडियंस देख पा रहा है कि क्रिएटिविटी पे उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नाउअडेज दे आर डूइंग कि जो भी डेडलाइन था उसको एक्सटेंड कर दिया है बाकी सारे मूवीज के लिए या जो भी सीरीज. आई टेल यू, ये सीरीज के होता है. अगर इस पर डिस्कशन करनी है, सीरीज होती है 1 2 3. हमेशा देखना, कोई भी चीज आएगी सीरीज 1 बहुत अच्छी होगी. हेरा फेरी पे लगा लो, ठीक है. हेरा फेरी वाज वेरी गुड. हेरा फेरी 1 came as a kind of, you can say, blockbuster to it. हेरा फेरी 3 भी आई, मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं है. I have not seen it out. I won't rate it out. ठीक है. उसमें क्या आता है, वो सीरीज के लिए होता है कि उनको होता है कि we are to fetch the audience, कि वो रिलेट रहे. ठीक है, वो उस चक्कर में करते हैं. तो आपने अगर इसको टारगेट करना था, एक तो डू नॉट गो फॉर एनी कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल. आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, सबके लिए. किसी का पॉपुलर अथॉरिटी का नाम लेकर मत बताओ जब तक वो फैक्ट नहीं है. खुद में कंट्रोवर्शियल नहीं लेने. सपोज वहां पे कोई पैनल में मार्वल फैन हुआ, you should not take it out, right? Oh, I don't even know about much about it, but just giving a very simple example, you could say it out that even in entertainment sector, what actually happens is they are on the deadlines to fetch the audience and creating number of series, and for that they have deadlines and they are not able to provide us quality content. वही चीज है, मैंने किसी और फॉर्म में समझ आया, वो गलत था. तो तुम लोगों ने मार्वल, आमिर खान, अक्षय कुमार पता नहीं कहाँ स्टार्ट किया है. फिर तुम लोग आ गए एजुकेशन सेक्टर में, भाई आए हो तुम, है ना. ये नवीन, नीलेश और आई थिंक नवीन ने दिया था आमिर खान का और नीलेश ने अक्षय कुमार का. अलग ही सेक्टर चल रहा था. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यू गाइस, इट वाज अ वेरी गुड वन. ठीक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, बट डू नॉट गो फॉर दैट. मैम तरीका सही नहीं था बोलने का, मतलब नाम नहीं लेना था, सिर्फ एक्टर बोल सकते थे. नाम नहीं लेना था भाई. अक्षय कुमार, मैंने ये बोला है, हीरो अगर कोई साइन कर रहा है उसको पैसे मिलते हैं. तुमने स्क्रिप्ट देखनी होती है, जो वो तो मूवी की स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है ना, अच्छी है कि बुरी है. वो क्या कर लेंगे, वो सिर्फ एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, एक्टिंग बुरी कर सकते हैं. एक्टिंग के लिए अक्षय कुमार भी जाना चाहता है, गेस आमिर खान भी. तो आई एम नॉट इन फेवरेट, आई डोंट हैव एनी फेवरेट अमंगस्ट दीस, बट दे आर नोन फॉर दैट. ठीक है. अब तुम्हें वो उस तरह से आ जाता है. किसी की मूवी बहुत जल्दी, जो दीपिका पादुकोण की फर्स्ट मूवी बहुत अच्छी चली, क्यों? बिकॉज मूवी का कंटेंट शायद अच्छा था. सोनम कपूर की फर्स्ट मूवी नहीं अच्छी जा सकी, क्यों? मूवी का कंटेंट अच्छा नहीं था. आमिर खान चूजेस अ मूवी, अब उसमें 3 इडियट्स की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी,
कोई और एक्टर भी होता तो भी उसकी बहुत अच्छी चलती। फेमस क्लियर? कुछ चीजों को जनरिक लेकर देखा करो, वो चीज मत बताओ। अब तुमने क्या किया, तुमने मिक्स कर दिया। जब तुम्हें मैंने हर टाइम बोला है हेडर्स दिया करो, you could give the headers related to education sector, entertainment sector, job sector, different sectors बना के बोलो। तुम लोग मिक्स करके कोई भी चीज किधर बोल रहे हो, that is not valid guys। थोड़ा सोचा करो हेडर्स बनाने से पहले। अब मैं एक एक के पहले जाऊंगी, पहले सोचो कि क्या हेल्प करता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। अगर डेडलाइन हो तो क्या होगा, पहले कई लोग प्रेशर के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे तुम लोगों ने कईयों ने बोला भी कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, सम आर यूनिक, सम आर डिफरेंट वेज। तो वो पर्सनालिटी पे वेरी करता है। कोई डेडलाइन के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है। डेडलाइन से हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे एक्सपोजर ले सकते हैं। सपोज में तुम्हें टाइम बाउंड करो, डिस्कशन करते रहो, तुम पूरा दिन भी कर लोगे, पर तुम्हारा टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तुम क्या गलत डिस्कशन, अगर मैं ना पॉज करूँ तुम तो किसी और टॉपिक पे शुरू हो जाओगे थोड़े 5-10 मिनट बाद, जिसमें you guys gonna do, ठीक है, that is going to waste your time also। अपने पे लेकर देखा करो क्या होगा अगर मैं डेडलाइन होती है तो क्या होता है। थर्ड चीज, अगर मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ, अगर नो डेडलाइन होगी तो हमारे पास टाइम होगा, ठीक है, थिंक करने का ज्यादा, मतलब क्रिएटिविटी इनहैंस हो सकती है इफ नो डेडलाइन। इन सम केसेस क्रिएटिविटी इनहैंस होगी क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा हो पाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है निवान? ब्रेनस्टॉर्म, नया आइडिया देना, नए आइडियाज देना, है ना। एक ही आइडिया पे फिक्स नंबर रहना, ऑफ चाहे आइडियाज। बुरे आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म मतलब अपने आइडियाज पोर्ट्रे करते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारी जो एनर्जी है, अगर कम टाइम होगा तो हम प्रॉपर एनर्जी एक ही प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं। अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं, सपोज करो यार इन योर पेपर, इन योर एग्जाम यू हैव 3 hours टू राइट दैट पेपर, राइट। आपकी सारी एनर्जी, सारी चीजें किसमें चैनलाइज होती है, पेपर लिखने में होती है ना, तो योर एनर्जी गेट चैनलाइज्ड। पर घर पे कोई टेस्ट सॉल्व करने लगो, में मदर ने बुला लिया, बीच में सोशल मीडिया से कोई मैसेज आ गया, कुछ आ गया, योर एनर्जी गेट डाइग्रेस्ड, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो जब हमारी डेडलाइन होती है और शॉर्ट इंटरवल की होती है तो हमारी एनर्जी प्रॉपर सही टाइम पे चैनलाइज हो सकती है। क्लियर? एनर्जी चैनलाइजेशन का। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉइज क्या करेंगे, वर्क हार्ड करेंगे। दे विल वर्क बेटर एंड वर्क हार्ड टू प्रूव देमसेल्व्स। कई प्रमोशंस, कई चीजें डिपेंड करती है, तो आप वर्क हार्ड भी उस चीज पे करोगे, और वो भी आपको क्या है, अगर डेडलाइन होगी तो। क्लियर हुआ? अगर डेडलाइन क्रिएटिविटी किल कैसे करती है, अब देखो डेडलाइन हमें क्या करती है, फोर्स करती है कि टास्क को फिनिश करो। चाहे हमारे दिमाग में भी और क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हो तो क्या क्रिएटिविटी खत्म करती है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आ जाती है, हम कई बार इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, वी आर ऑलरेडी इमोशनली एग्जॉस्टेड। कोई चीज होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज यू आर नॉट वेल, एनीथिंग कैन बी देयर, और तुम पे मैंने एक डेडलाइन लगा दी कि अभी करना है, तुम्हें वो डेडलाइन से प्रॉब्लम होगी, चाहे तुम्हारे में जितनी मर्जी अच्छी एनर्जी कैपेसिटी थी, यू गाइस कैन नॉट डू दैट। ठीक है, थर्ड चीज क्या आ जाती है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कुछ आइडियाज, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में कुछ आइडियाज होते हैं जिनको ज्यादा टाइम चाहिए, कोई प्रैक्टिस करने में, कोई एग्जाम्पल लेने में। अगर आप डेडलाइन लगा दोगे तो आप नए नए आइडियाज को नहीं ट्राई कर पाओगे, जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसकी वजह से नए आइडियाज वैसे ही लेफ्ट आउट हो जाते हैं, विच आर टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ टाइम टू गो फॉर ट्रायल्स ऑल्सो। ट्रायल्स भी नहीं कर सकते आप उसके। ठीक है, एक जो लास्ट इसका आ जाता है कि डेडलाइन क्या करती है। कुछ लोग जो डेडलाइन को कैसे करते हैं, जैसे कोई क्रिएटिविटी, कोई आइडिया आता है उनके माइंड में, ठीक है, बट वो जब अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट दे डू नॉट हैव अ टाइम फॉर दैट टू थिंक अबाउट इट, कि अगर आइडिया मैं एक्चुअल में लगाऊंगा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दे डू नॉट हैव द टाइम फॉर ट्रायल्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कॉर्पोरेट, या फिर कोई प्रोजेक्ट भी तुम लोग बनाते हो, जब बीटेक का प्रोजेक्ट था, कुछ भी लगा लो, एक दिन बाद सबमिशन है, तुमने एक आइडिया सोच लिया मैं ये करूंगा, पर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है उसको अप्लाई करने का, तुमने डायरेक्ट प्रेजेंट किया, फेल हो गया वहां पे। That is, sometimes you don't have a time to present, or you can say to check your ideas also. So these were some of the pointers which you missed. कई चीजें मिस की, कई चीजें आपने बोल दी। ठीक है मैम, ये एक मैंने बोला था लाइक ये प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट क्या आपने बीटेक प्रोजेक्ट, दैट वाज अ गुड पॉइंट, आई विल कम टू ईच वन ऑफ यस रामाकांत फर्स्ट टाइम। रामाकांत, जब इंट्रोडक्शन देनी है, इसमें थी डेडलाइंस की मीनिंग, डेडलाइन के एक्सप्लेन से अच्छा था पूरी लाइन का एक्सप्लेन करते मीनिंग। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैं वर्ड बोलती हूँ ना, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू एजुकेशन, हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
तो ये नहीं है कि पहले हमने डेडलाइन का मतलब एक्सप्लेन किया, पहले हमने क्रिएटिविटी का एक्सप्लेन किया. So it should be that, good morning everyone, the topic of today's discussion is this. We all know that sometimes we are given the projects where we have certain kind of deadlines. They vary, they can be short interval, they can be long interval. समझ गए? So now the topic is, does it enhance our creativity or it lowers down? Now I open the house of our discussion, but before that putting my point that according to me, वो क्या करती है? अच्छी है डेडलाइन होना. कुछ भी लगा दो. और एक बहुत स्पीड फास्ट थी, जैसे ट्रेन पकड़ने की मैं फटाफट खत्म कर दूं. जितना अंबर ने टाइम लगाया कंक्लूजन में, उतना रामाकांत ने कम टाइम लगाया इंट्रो में. तुम दोनों की बैलेंस ही नहीं था. क्लियर? बैलेंस इट आउट, स्पीड नहीं पकड़नी है. सेकंड, इट वाज नवीन. नवीन का बहुत अच्छा पॉइंट था, दैट इज इम्पैक्ट इज वेयर पार्ट्स दे आर लाइंग देयर. इट वाज अ गुड पॉइंट. नवीन, योर कंटेंट इज गुड. व्हेन यू आर वेरी स्टार्ट ना, यू हैव अ आइडिया कि आप एग्जांपल्स पुट करते हो, कंटेंट अच्छा देते हो. बट मैं वही चीज कहती हूँ, धीरे धीरे मूव करते हो ना, फॉरवर्ड जाते रहते हो. एक चीज हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा बोलना शुरू कर दोगे उतनी गलतियों की तरफ ज्यादा जाना शुरू कर दोगे. अपने पॉइंट्स को देखा करो. या तो सपोज किसी ने पॉइंट दिया, प्रताप ने उसका अगला पॉइंट दिया था, प्रताप ने वहीं से गलती कर ली थी. डेडलाइन शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल. प्रताप, हमारा टॉपिक क्या था? डेडलाइन कैसी होनी चाहिए, या डेडलाइन क्या अच्छी है कि बुरी है? पहले तो यही टॉपिक था ना. वहीं से गलती हो जाती है, वो बहुत स्लाइट गलती है जो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग फ्रॉम यू गाइस. ऑब्जर्व करना है कि मेन प्रकार का क्रक्स था कि बेटर कैसे हो सकती है डेडलाइन, जबकि टॉपिक क्या था? डेडलाइन होना अच्छा है या बुरा है. क्लियर? वो गलती थी. तो वो फर्स्ट वाला अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो बोलेगा कि प्रताप ने तो पहले ही गलत बोल दिया, फर्स्ट वन. और जब भी नवीन ऑल्सो एंड प्रताप ऑल्सो, जब आप स्टार्ट करते हो तो नवीन ने भी ये चीज मिस की. नवीन, वेन एवर यू हैव टू स्टार्ट, you will say that okay, you gave your point. जैसे आपने स्टार्ट किया, it was okay कि रामाकांत you gave your point, but according to me, जब आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना नवीन, जैसे रामाकांत कह रहा था कि डेडलाइन होनी चाहिए, आपने बोला कि वो खराब करती है. इट इज रामाकांत, आई अप्रिशिएट योर ओपिनियन, बट अकॉर्डिंग टू मी आई एम अगेंस्ट इट एज अपना पॉइंट. तो इट वुड बी वेरी बेटर वे ऑफ स्पीकिंग. क्लियर? उसके बाद आ गया धीरज का. धीरज पॉइंट ही गलत था. और जब भी हर पर्सन, जब तुम्हें स्टार्टिंग में चांस मिल रहा है, तो अगर तो तुम एग्री कर रहे थे तो ओके, वैसे आ रहेगा. नीलेश बोलता है नवीन को, वेल सेड नवीन, आई एग्री विद इट एंड आई सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट. हमेशा इस तरह से स्टार्ट करो. द अदर पर्सन विल पेव यू द वे टू स्पीक, और आपके पॉइंट्स की वेटेज बढ़ती है. बोलने का तरीका. क्लियर? हर जगह पे ये मैटर करता है. अब दिस इज ऑल अबाउट हाउ अटेंटिव पर्सनालिटी, तुम्हें कितना बोलना आता है किसी टॉपिक के बारे में. क्लियर? तो नवीन, यू हैव दैट क्रक्स. अभी गलती जा रही है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी कर लेना. ओके. उसके बाद आ जाता है अंबर का. अंबर का प्रोजेक्ट. अंबर, एक गलती थी, पॉइंट बहुत अच्छा था. यू टुक इट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट. यू वुड से दैट ओके, ऑल ऑफ यू, आई वांट टू टेक योर दिस direction. I want to bring this topic to a new direction. We all have been given projects. If we had new ideas at that time, अपने पे ले लो या तो. ठीक है? मतलब सपोज, और स्टार्टिंग सीधा मैं ये करो, कॉलेज में प्रोजेक्ट होते हैं उसको ऐसे होता है, वो मत करो. मैंने हमेशा बोला है इंट्रो बहुत अच्छी करो, क्योंकि बाकी पॉइंट बहुत अच्छा था आपका. क्लियर? जो अगर हमारे न्यू आइडियाज है, वो न्यू आइडियाज एट वंस, एनहांस क्रिएटिविटी, इट इज ऑल फाइन. बट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो. तो हेडर लेकर आने की कोशिश करना. ठीक है? नेक्स्ट आ गया नीलेश का पॉइंट. नीलेश, इट वाज एजुकेशन फास्ट लर्नर स्लो. नीलेश, यहाँ पे गलती थी. सीधा ही आप आ गए फास्ट लर्नर स्लो लर्नर में. बच्चे कैसे हैं, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी कैसी है, हमने उससे पहले क्या मूव करना है? टॉपिक पे मूव करना है. टॉपिक पे आ रहा है, वो आपको ये नहीं देखना कि अच्छी किसके लिए, बुरी किसके लिए है. आपको पहले ये बताना है कि डेडलाइन अच्छी होती है कि बुरी होती है, क्रिएटिविटी को करती है कि नहीं करती है. जब तुम लोग एक बार इस पे सारे बोल लो, उसके बाद थोड़ा चेंज कर लो, दैट इज ओके. पर अपना एक एक पॉइंट तो अच्छा दे दो. ठीक है? दैट शुड बी देयर. उसके बाद आयुष. आयुष, सेम वे, विच डेडलाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पहली होनी चाहिए, दूसरी नहीं. आयुष ने तो पहली बार में ही सोच लिया था कि मैंने सारी कन्वर्सेशन इस पे करनी है. मैम एक्चुअली 2 डेडलाइन लिखा था ना, इसीलिए मैंने सोचा था. थोड़ी रेपिटेशन तो कभी नहीं होनी चाहिए कंटेंट में, वो बंदे को याद रहता है. मैं ये बोलूं, आयुष का एक ही पॉइंट है, बार बार रिपीट, 2 1 2 1 2 1, यही चलता आ रहा है. ये नहीं होना चाहिए. कभी भी अपने पॉइंट्स में रेपिटेशन मत लाओ. If you get, see, I'll give you negative feedbacks also, positive also. I'll praise you one day, you can say I'll criticize you other day. But it is good, अभी जितना criticism ले सकते हो ले लो. वहां पे जाके गलती से भी ब्लंडर नहीं करोगे, क्योंकि पता होगा उस टाइम में मेरी वहां पे मैम ने बोला था, थोड़ी सी मुझे फील हुआ था. If you feel bad, I'm sorry for that. I don't want to make anyone feel bad about it. But it is just
2-1 या इस तरह से अपना मत बोल लो, अपनी रेपिटेशन, अपनी क्वालिटी खराब करते हो। तुमने बोल के छोड़ देना एक बार पॉइंट, उसके बाद कोई और पकड़ रहा है, लेट दैट पर्सन भी कि वो आपका पॉइंट वो कर रहा है। अब जैसे मैंने आयुष के पॉइंट पे बोला था कि नीलेश कर रहा था या धीरज कर रहा था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ द नेम्स, कि ये दोनों कर रहे थे, तो आयुष यू शुड बी सैटिस्फाइड कि मैंने 2 लोगों को आपस में लड़वा दिया, मैंने तो अपना पॉइंट दे दिया ना। तो दैट शुड बी योर सेटिस्फेक्शन लेवल कि आपने अपना एक पॉइंट दिया और बाकी लोग मेरे पॉइंट पे आगे से बहस कर रहे हैं, तो वो भी गलत थे। तो अच्छा पॉइंट दो, इस पे यू शुड गिव पे वे टू अदर्स टू स्पीक। क्लियर? उसके बाद आ गया आपका प्रताप का। एक तो पॉइंट सुन के बोला करो, सेम में पोस्टपोन वर्क, दैट वाज फाइन प्रताप, वो पॉइंट ठीक था। अगर हम पोस्टपोन करते रहेंगे लोग तो क्या करेंगे, टाइम वेस्टेज करते रहेंगे, है ना, अदरवाइज टाइम। तो वो पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा अच्छे से बोलना, रिफाइंड होके एक ही वर्ड भी नहीं बोलना और बहुत लंबा भी नहीं बोलना, वो गलत है। उसके बाद इट इज शुभम। शुभम मुझे पॉइंट नहीं समझ आया एफिशिएंसी वाला। मैम अगर किसी काम को अगर हम लोग लिमिटेड टाइम में करते हैं तो हम लोग ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को वर्क एग्जाम के लिए तैयारी ही करना रहता है, कोई लाइक बच्चा वही 15 मैम दिन एनर्जी वाला, लाइक एनर्जी प्रॉपर मैंने यूटिलाइज कर सकते मैंने जब वो पॉइंट बोला दैट यू शुड बी एबल टू, जब कम टाइम होता है तो हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, कंसंट्रेशन बोल दो, चैनलाइज एनर्जी एक ही डायरेक्शन में होती है, उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। उस पॉइंट को एक्सप्लेन भी करो, कैसे बोलते हो। अगर तुम ऐसे बोलोगे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हमें डेडलाइन मिलेगी, मैं तो पूछ चुकी ना कैसे, हाउ, दैट इज अ क्वेश्चन, और वो तुम नहीं आंसर कर पाते हो। ठीक है, उसको साथ में दैट विद वी हैव अ शॉर्ट ड्यूरेशन, आवर फोकस, आवर अटेंशन, आवर कंसंट्रेशन, इट इज फिक्स्ड एट दैट टाइम, और हमारी एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगी। क्लियर? तो वो पॉइंट अच्छा नहीं था, इट कुड बी बेटर। क्लियर? बोलने का तरीका वो गलत था। उसके बाद अगेन रामाकांत, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। अब यहाँ से रामाकांत इज वेयर, हाँ रामाकांत कट कर करके बाकियों को कि मैंने एक पॉइंट बोलना है, क्या ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ऐसे तो मैं तुम्हें 10 साल पढ़ाती रहूंगी। मैम एक्चुअली में जैसे कोर्स का ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन होता है, तो फिर लोग उस ड्यूरेशन में क्रिएटिविटी भी करने की कोशिश कर लेते हैं और काम पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं देखो उस कोर्स बेसिस। पे ना, तुम किसी कोर्स पे पॉइंट नहीं कर सकते बिकॉज वो करिकुलम पे बेस होता है, वहाँ पे डेडलाइंस नहीं होती, डेडलाइंस हमारी सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे होती है। अब 3 साल का कोर्स है, सपोज तुम्हारा 4 साल का बीटेक का कोर्स है, तुम उसको डेडलाइन नहीं कह सकते। अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारा 8 साल बीटेक कर लोगे, तुम सपोर्ट करोगे ये चीज को? कभी भी नहीं करोगे। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि 2 साल में बीटेक हो जाओगे, यू विल सपोर्ट इट आउट कि कम टाइम में करवा दो हमारी बीटेक, हमारी इसके बाद वी हैव मोर ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो कभी भी हम किसी रिफाइंड कोर्स को डेडलाइन नहीं मान सकते। हाँ, उसमें जो प्रोजेक्ट होता है तो थीसिस के कुछ एक पार्ट को कह सकते हो कि जहाँ पे थीसिस में जरूरत पड़ती है, पर कोर्स को मत बोलो, ठीक है, वो नेगेटिव पड़ेगा आप पे। ओके, उसके बाद नवीन का स्टार्ट हो गया। नवीन वहीं से जब मैंने एंटरटेनमेंट, अब नवीन कहाँ से स्टार्ट कर सकता था? ओके, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट, नाउ लेट्स गो टू एंटरटेनमेंट सेक्टर वेयर वी आर सीइंग रैपिड इन्फ्लक्स इन द मूवीज ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के चक्कर में क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रिलीज मोर ऑफ द सीरीज, they are trying to do not give us quality content, rather they are proving about quantity पे कर रहे हैं। तो your point would be very different from all, और एक अलग पॉइंट रहता। क्लियर हुआ किस तरह से बोलना है? और ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छे वे में बोला जा सकता था जो आपने मिस कर दिया। ओके, और कभी भी किसी मूवी का कोशिश करा करो, किसी भी सुपरस्टार, मूवीज, पॉपुलर फिगर, नाम टारगेट ना करो जब तक वो पूरा फैक्ट प्रूवन है। ठीक है, इफ इट इज रिटन ऑन न्यूज़पेपर, वो लिखा नहीं है, हम ऐसे बोल नहीं सकते, और ना ही किसी हीरो को टारगेट करना इन एनी वे। सेम फॉर बाद में नवीन, नलेश, नवीन जो भी आपकी डिस्कशंस, दैट इज ऑल आउट। अब क्लियर हो गया किस तरह से बोलना है, एजुकेशन सेक्टर का भी पता चल गया किस तरह से बोलना है, कोर्सेज पे डिमांड नहीं करना। देन अगेन इट इज अबाउट, नवीन ने बोला ग्रुप वर्क वाला, दैट इज ओके कि ग्रुप वर्क वो करता है। आयुष का कॉम्प्लेक्सिटी, आयुष कॉम्प्लेक्सिटी वाला पॉइंट क्या था? मैम इसमें मतलब बहुत सारे चीज हम पहले से जज नहीं कर पाते कि कोई टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है, लाइक स्टार्टिंग में। उसको तुम ऐसे यूज कर सकते हो कि हम टास्क को अप्लाई नहीं कुछ चीजों में कर पाए, जैसे बोलो ना कि टाइम कम हो, तुम प्रैक्टिकली वो एक्सेप्ट या प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाओगे कुछ चीजों को, तुम्हें पता नहीं होगा उसका एंड रिजल्ट कैसा आएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम एंड रिजल्ट के लिए सोच सकते हो, उसको इस तरह से बोलना था, वो पॉइंट उस तरह से बोलो। ऑलवेज स्पीक इन द वे वेयर अदर पर्सन शुड अप्रिशिएट। अगर एक मूवी देखे, आई डोंट रिमेंबर द कंटेंट, शायद OMG2 का है, कि ऐसे बोलो कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, है ना? So it should be your way also, that speak in a way that people should appreciate you.
नहीं एक्सप्लेन मैम, करो। मैम मेरा ये कहना था कि मैम जब हम कोई टास्क में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वहाँ बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का नीड हो जाता है, तो वहाँ पे डेडलाइन वो बैरियर बन सकता है, ये मेरा कहना। इट इज जेनरिक, पर जेनरिक मत रखो। अगर यही बोलोगे तो बैरियर ऑफ टाइम वेस्ट होगा, बैरियर टाइम वेस्ट। अपने पॉइंट को चेंज करके दो, समझ आ गया? मैं आवाज आपकी आवाज कम आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है मैम। नाउ इट इज फाइन। यस मैम, इससे Yes. पहले Clear? वाला कुछ सुनाई नहीं पड़ा। There might be a shirk in the, you can say, might. अंबर का उसी तरह से, अंबर जो आपने बोला, द पॉइंट टू स्टार्ट एग्जाम 2 मंथ्स में आ जाता है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, 1 मंथ में आ गया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, ये मत रखिए। इसको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करना। वेरी कैजुअल, डू नॉट बी स्टार्ट बीइंग कैजुअल इन योर जीडी। तो तुम एक्चुअल फाइनल जीडी में तो कैजुअल हो गई नहीं, ये तुम यहाँ पे होते हो क्योंकि तुम्हें होता है कि टाइम दिया हुआ तो कुछ ना कुछ बोल ही जाओ। मैंने वही बोला है, क्वालिटी पे फोकस कर लिया करो और इनफॉर्मल मत होना। अगर यहाँ पे तो इनफॉर्मल कैसे होगा तो बोलूँ कुछ स्लैंग तुम्हारा वहां पे भी रह जाएगा, वो नहीं तो करना। कैसे बोलूँ मैम? You could say it out that if we see in normal levels also, if I have to fetch an example, when we have a few days left for our examination, we are more concentrated, we start giving best results, the student works better under pressure. Same applies for the deadlines. ठीक है, अब एग्जाम कभी तो होना ही होना है, ये तो तुम्हारी गलती है। तुम्हें 2 महीने पहले नहीं पढ़ना और तुम्हें महीना पहले पढ़ना और तुम्हें 1 रात पहले पढ़ना है, वो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। उसको डेडलाइन नहीं मान सकते। तभी बोली ना, टॉपिक को समझो, उसको या तो रिलेट करो। क्या आई वांट टू फैच एन एग्जांपल जिसमें जैसे बच्चों को होता है कि एग्जाम से 1 दिन पहले वो ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी एक साइड पे हो जाती है। उससे पहले हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी तरह से। उसी तरह से हमें किसी प्रोजेक्ट की, कॉर्पोरेट में किसी काम की, कहीं पे भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी, ये बोल देते गवर्नमेंट में लोग काम ही नहीं करेंगे। आरटीआई है, आरटीआई का एग्जाम्पल दे देते। अगर डेडलाइन ना हो, 11 दिन में तुम्हें देना है रिजल्ट को, है ना, तुम्हें कोई प्रोवाइड करना है, सरकार काम ही नहीं करेगी, वो बैठ जाएगी वहीं पे। यू वोंट एवर गेट सम ऑफ द सबमिशंस। कुछ फैक्ट्स तो तुमने मिस कर दिए। तुम उस चीजों पे जाओ कि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट ने डेडलाइंस क्यों बनाई है, ताकि वर्क की एफिशिएंसी बढ़ सके, कोई भी काम को पोस्टपोन ना कर पाए। और अगर करेगा तो उसमें क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमें। ये भी क्लियर हुई चीज? सी नो वन गेव दैट गुड पॉइंटर्स, जो तुम्हारे लिए ही बना है ना। उसके बाद इट वाज सेम वे नीलेश का, बैक टू वर्क, कॉलेज, टीचर, ये क्या था नीलेश पॉइंट? आईआईटीज में ये नहीं बताना, कोई आईआईटीज को मत करो कि वहां पे सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। हाँ ये कर लो, सिंपल, ना ही पहले पूरी आईआईटी का नाम लेना है, कौन सी आईआईटी है, ठीक है। Don't start, you can say, demeaning that, but you could say that we have seen the ratio of suicides in students have increased. Recent news हमें मिलती है in different IITs we have heard. तो हर IITs में देखो, it is not about IITs, normal colleges में भी होता है। Yes, ma'am. They are not able to meet up with the pressure and they go for, they either get depressed या फिर वो suicide means use करते हैं, and that is why we all say अगर deadlines हो भी, that should be less stressful and they should motivate you in a beautiful manner to grow rather than letting you down. Clear हुआ? अब हर चीज का उसी तरह से फिर कंक्लूजन होना था। बहुत पॉइंट से गलत है, मैं वो हर पॉइंट नहीं बोल रही हूँ, जिसका मेन वेटेज था मैंने हर एक का कोशिश किया। क्या मैम, शॉर्ट डेडलाइन और लॉन्ग डेडलाइन और ये वाला टॉपिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शॉर्ट डेडलाइन ये ऐसा सजेशन कर सकते हो, जैसे बोलते हैं ना एट द एंड, Amber could give it out in the conclusion sector that as we have seen that deadlines can have a both impact. It can be useful. It can help us to create creativity, as we have different humans in the panel. Also, we are all different from one another. Some are unique in terms of they can work very well under pressure, but some of us might not be able to work under pressure. But we can have a proper channelization that if deadlines are to be there, so what we suggest is that there should be 2 deadlines instead of 1. So that the student, the person should not feel lots of pressure. Second, they should start that deadline should give us some kind of a rewards also. That if we complete it before, there should be certain incentives या rewards होने चाहिए, तो ताकि the person should be happy while doing his work and rather than being stressed. Third, even if the person is not able to meet the deadlines, he should be given a second chance, or if not met, so he should be held that the reasons he should be made, उनसे पूछना चाहिए कि क्या गलतियां थी, क्या कमियां थी, ठीक है। आपके इमोशनल एग्जॉस्टेशन का ध्यान रखना चाहिए, because these days we are under emotional, we do get emotional exhaust very soon. हर इंसान के प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में कुछ और चल रहा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और चल रहा है, और जब तुम वो चीज को बैलेंस नहीं कर पाते हो, you go for wrong ways. मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा था कंटिन्यूअस इवोल्यूशन वाला, लाइक हमें जो मैंने बाकी हमेशा छोड़े हैं, they were fine also. मैंने हर पॉइंट नहीं, मैंने तो उस चीज में बोला जिसमें तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी है,
जैसे शुभम के मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिले नहीं. शुभम, it was not like you could not give me very good pointers today, and it was your first one with me, so that is why it is okay. But you understood कि किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है पॉइंटर, ठीक है? हम जैसे पॉइंट है कि कोई एंड नहीं होते, जो क्रिएटिविटी है उसमें कुछ एंड नहीं है कि यहाँ ये है कि हम कह देंगे अब क्रिएटिविटी एंड है, इसके बाद देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. I could not get you. हम जैसे क्रिएटिविटी कुछ एंड नहीं होती कि हम कह देंगे अब उसके ज्यादा क्रिएटिव नहीं बन सकते हम. इट इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. Never, it is not like that. You cannot be more creative than that. अगर तुम फिर ऐसे poets की तरफ जाओगे तो हर poem different creativity पे different dimension पे होती है. कभी भी creativity खत्म नहीं हो सकती. It cannot be a static one. Yeah, you can have. अब क्या होता है, मैं तुम्हें एग्जांपल दूं. आर्किटेक्चर देखते हो, आर्किटेक्ट देखते हो ना. एक आर्किटेक्ट पर चले जाओ, घर बना रहा है, वो एक ही पैटर्न में बनाता रहेगा. उसके हर घर में कुछ ना कुछ आइडेंटिकल होगा, पर कुछ ना कुछ इनोवेशन भी होगी. एक आइडेंटिकल पॉइंट वो छोड़ देता है. वो अगर वो हर घर के सी बना रहा है ना, तो जितने भी घर उसके बनेंगे वो सी बनेंगे. अगर वो बाहर छोटा ऐसे पार्क बना रहा है, उसका एक पैटर्न बन जाता है. दैट इज सब्जेक्टिविटी ऑफ अ पर्सन. दैट इज नॉट कि आपकी वो एंड हो चुकी है. मेरी सब्जेक्टिविटी होगी. व्हेनेवर अब आपके पास 3-4 डिफरेंट मेंटर्स होंगे जीडी के. एवरीवन हैज अ डिफरेंट सब्जेक्टिविटी, बट इट इज नॉट व्हेन द पर्सन प्रोवाइड्स यू कंटेंट सबका सेम या डिफरेंट होगा. बट बोलने का, प्रेजेंटेशन करने का, आपसे डिस्कशन करने का, एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे. क्लियर? वो सब्जेक्टिविटी आ जाती है. सब्जेक्टिविटी और स्टैटिक, उसमें कंफ्यूज मत हुआ. क्लियर? और कोई डाउट्स किसी के? मैम, वो जो प्रोजेक्ट वाला मैंने बोला था कि अगर कम टाइम रहता है प्रोजेक्ट बनाने में तो अपने को मेंटल फोर्स लगता है, और मतलब क्या बोलते हैं, अपने को पुश मिलता है कि और क्रिएटिव सोचे कुछ, क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना है. तो इसको कैसे हेडर देना चाहिए? It should be like coming to an education sector. जैसे नवीन के लिए मतलब coming to an entertainment sector, fixing to another sector. Education sector पे आओ, that even we are to get number of projects. B.Tech के type पे मिलता है. When students they are able, in the student run also they get number of projects. And if we do not put a deadline, they won't be able to channelize their energy. Youth is into different things. जब तक तुम्हें project की deadline नहीं मिलती थी, take it on your case. You used to complete it out. कभी था कि आपने project से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले complete करके बैठ गए? कभी भी नहीं होगा. Students की summer vacations ले लो. अगर वो 31 जून को बहुत अटेंटिव होंगे अपनी समर वेकेशन की बुक कंप्लीट करने में, उससे पहले दे आर नॉट डूइंग इट, दे आर एंजॉयिंग देयर हॉलिडेज. इफ देयर इज नो डेडलाइन, दे वोंट बी एबल टू मीट देयर वर्क. क्लियर? दैट इज एप्लीकेबल बोथ ऑन द किड सेक्शन, बोथ ऑन द यूथ सेक्शन आल्सो, एंड इवन इन द एडल्ट केस आल्सो. अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हो, कहीं पे भी हो, इफ यू डोंट हैव अ डेडलाइन, यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट दैट वर्क. आपके माइंड में वो प्रेशर भी नहीं रहेगा. एंड सम प्रेशर इज ओके फॉर यू, बट इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव प्रेशर. दैट इज अ थिंग. क्लियर? तभी हमने बोला ना, स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए प्रेशर. स्ट्रेसफुल होगा तो हैम्पर करेगा आपकी एनर्जी. पॉजिटिव होगा, कुछ रिवॉर्ड सेक्शन से होगा, कुछ इंसेंटिव से होगा, कुछ इस तरह से होगा, तो आपको क्या मोटिवेट करेगा. तो दैट वाज अवर एंडिंग फॉर दैट. क्लियर? अब क्लियर हुआ सबको? इनफॉर्मल नहीं जाना, फॉर्मल जाना है. पॉइंटर्स वे डिस्कस्ड, हर एक का वे हमने डिस्कस किया. जस्ट गो थ्रू द फीडबैक एंड सिमिलर वे आई से यू एट द एंड जॉट डाउन दीस पॉइंट्स. रिकैप करके देखा करो कितना हो गया, कितना नहीं आ गया. चलो, all the best, and in the evening also there is a group discussion, but try to attend 1 GD in a day. Okay, so that everyone gets a chance. Clear? Rest is up to you. If you have a slot, देख लेना, नहीं तो एक slot try करा करो. ठीक है? चलो, all the best guys. Take care. Bye bye. Thank you.